ये माइक किसका ऑफ है? माइक किसका ऑन है? बंद करो भाई। So today I am going to start lecture. Okay. After the lecture, there is surprise test of BCA 304. The topic is the system approach. The topic is system approach. In last lecture, I introduced about the topic the system approach. System approach means the approach to solve any problem. The approach before the developing of any MIS, any information system, the basic step which must be carried out. So first of all, before describing the steps, I am drawing a chart which consists the steps of first define the problem, second develop alternative solution, टाइमली आया करो वासिक मुस्तफा। Select the solution, design the solution, श्रुति लेट हो। ठीक है ठीक है। Implement the solution. These steps I already introduced in last lecture. All steps are connected, and these all steps also monitored and evaluated. Monitored and evaluated means these are connected in the form monitor and evaluate result. Okay, so the first step, in the first step, recognize and define a problem or opportunity using system thinking. Second step, develop and evaluate alternative solutions. Third step, select the system solution that must meets your requirements. Third, design the selected system. Last but not least, implement and evaluate the success of designed system. These are the system approach which is I design with a flow chart or any chart. ठीक है, किसी भी आप चार्ट के थ्रू, पिरामिड के थ्रू भी इन स्टेप्स को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। हमने एक फ्लो ऑफ
स्टेप्स को जो है फ्लो चार्ट की तरह लिखा, नॉट ट्रेडिशनल फ्लो चार्ट बट इट इज आल्सो अ फ्लो ऑफ चार्ट्स। ठीक, अब सबसे पहले स्टेप जो हमारा है डिफाइनिंग प्रॉब्लम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, सबसे पहले हम सिस्टम अप्रोच को थ्योरेटिकली एनालाइज करेंगे, बाद में इसी को प्रैक्टिकली एनालाइज करेंगे। तो टुडे थ्योरेटिकली हम लोग इसको एनालाइज करेंगे। डिफाइनिंग प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज मीन्स प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटीज आर आइडेंटिफाइड एज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टम अप्रोच। ओके, अ प्रॉब्लम कैन बी डिफाइंड एज अ बेसिक कंडीशन दैट इज कॉजिंग अनडिजायरेबल रिजल्ट या एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर। यूजर ने बताया कि ये प्रॉब्लम आ रही है, दैट्स वाई वी वांट अ सॉल्यूशन इन टेक्नोलॉजिकल फॉर्म, इन सॉफ्टवेयर फॉर्म, कंप्यूटराइज्ड फॉर्म। एंड अपॉर्चुनिटी इज बेसिक कंडीशन दैट प्रेजेंट द पोटेंशियल फॉर डिजायरेबल रिजल्ट। एक्सक्यूज मी। एंड ऑल्सो अ सिम्टम, इसी में एक सिम्टम टर्म भी यूज होता है। सिम्टम मस्ट बी सेपरेट फ्रॉम प्रॉब्लम। सिम्टम इज द ग्लिम्स, अ लेआउट, अ टॉय और डमी मॉडल which directly show to the customer which is and who is not aware about its requirement. So in the identified and select problem there are what do we want to change, why we want a system. This type of question may arise or you be able to recognize answer of these questions. ठीक है, maybe there are some problem, there are some misunderstandings may arise during this approach. Okay, one problem statement and after many solutions you may be agree, you may be select or desired result of many alternatives. Analyze the problem. Second step is the also analyze the problem, means what's preventing us reaching the desired state, lots of potential causes identified, key causes, and also whatever key causes may be documented and listed also. This is also a step. Second important, evaluating alternative solutions, means once alternative solution have been developed they must be evaluated so that best solution can be identified. The goal of evaluation is to determine how well each alternative solution meets your business and personal requirement. These requirements are key characteristics and capabilities that you feel are necessary for your personal or business success. ठीक है, it is compulsory that whenever you opt any optimum solution there may be number of alternative solutions. मैं आप कहीं भी रिजिड नहीं हो सकते, कहीं भी अपनी जो अल्टरनेटिव्स हैं उनको आप स्टॉप नहीं कर सकते हैं। ये नहीं कि आपने एट रैंडम तुरंत किसी भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को एनालाइज किया और आपने तुरंत कोई एक सॉल्यूशन को ऑप्ट कर लिया है। इट इज नॉट ए गुड अप्रोच। बाय दिस अप्रोच you may be suffer in later in developing stage, then there are no chance to come back, and if you come back there may be huge loss in the terms of cost and time. So it is advisable and always kept in mind whenever you are going to opt any solution there may be number of alternatives. That's why develop alternative solutions, then come to the actual solution. Next है select the, second मैंने आपको बता दिया evaluating या
developing alternative solutions. Third one, Kushagra, very late. 15 minutes passes in the current lecture. Selecting the best solution means once all alternative solution has been evaluated, you can begin the process of selecting the best solutions. इसमें भी एक हायरार्की बनी होती है, टीम बनी होती है, जो कि डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक बेस्ट और यूजफुल सिस्टम सोल्यूशन को ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये थ्योरेटिकल बेस भी हो सकता है, डॉक्यूमेंटेड भी हो सकता है कि ये एक तरीका, ये एक टेक्नोलॉजी है. इस मेथड से, इस डेटाबेस से, इसमें नंबर ऑफ टेबल्स में भी इतनी हो सकती है, इतनी होंगी. मतलब ये टू ए लार्ज एक्सटेंट द आइडिया रफ स्केच विल बी डिजाइन और ड्रैग्ड इन योर माइंड. इन योर माइंड या टीम जो नंबर ऑफ पर्संस होते हैं वो डॉक्यूमेंटेडली भी इसको शो कर सकते हैं at the time of whenever you are selecting the good solution. Alternative solution can be compared to each other because they have been evaluated using the same criteria. भाई आपने कोई क्राइटेरिया, कोई इनपुट्स चूज कर लिया, वो सब में दे रहे हैं, तो बेस्ट अल्टरनेटिव्स कौन सा होगा, बेस्ट सोल्यूशन कौन सा होगा, वो इन क्राइटेरिया के बाद जो रिजल्ट निकलेगा उसमें जो बेस्ट परफॉर्म करेगा, बेस्ट एनालिसिस में पास होगा, वो सोल्यूशन आप ऑप्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सेलेक्ट एनी सोल्यूशन विच बिकम्स योर बेस्ट सोल्यूशन. थर्ड वन इज, फोर्थ वन इज डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटिंग a solution. Once solution has been selected, it must be designed and implemented. डिजाइनिंग का अप्रोच आप फॉलो करिए. डिजाइनिंग के डिफरेंट अप्रोच होते हैं, जिसमें टॉप डाउन डिजाइन, बॉटम अप डिजाइन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन आल्सो इन एग्जिस्टेंस एंड वेरी यूजफुल पावरफुल डिजाइन. ये आपकी समझ चल रही है. You may have to depend on other business and user and technical staff to help you develop specification design and an implementation plan. ठीक है, अभी मैं आपको आगे SDLC बताऊंगा. इसी का प्रैक्टिकल अप्रोच है जो कि इंडस्ट्री में यूज होता है. दिस इज थ्योरेटिकल पार्ट, इट इज एनालिटिकल पार्ट. तो उसमें हर स्टेप में, एसडीएलसी के हर स्टेप में ये भी है, इन सब में एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है. डिजाइन में जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसको हम बोलते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट. एनालिसिस में डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एसआरएस, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. इसके पहले फिजिबिलिटी स्टडी आती है, वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. इन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, डेवलपिंग सोल्यूशन जो आपकी कंपनीज होती है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से एक मॉडल. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक फॉलो करेंगे, उसमें इनको हम डिस्कस कर लेंगे. तो मीनवाइल आई एम टेलिंग दैट if there is design procedure, then there must be also documented, known as design document. Okay, so whenever you are going to design, it must be planned firstly and then do the design. Design specification might describe the detailed characteristics known as detailed design. The detailed characteristics of the system known as detailed design. And capabilities of the people, hardware, software and data resources, जो कि आपके 5 मेन कंपोनेंट्स एंड रिसोर्सेज होते हैं. ठीक है, इसमें कि आपका पीपल हो गया, डेटा हो गया, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम एक्टिविटीज नीडेड बाय योर प्रपोज्ड न्यू सिस्टम. एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान, यहाँ पे जब आप बात करते हैं, एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान स्पेसिफाइज द रिसोर्सेज, activities and timing. Timing is the most important for proper implementation. Okay, next, whenever you are going to
select the resources, then type and resources of computer, hardware and software to be acquired for the sales point of view, inventory point of view. जितने आपके पॉइंट्स उसमें बने होते हैं, जितने आपके की क्राइटेरिया है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिसोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट, ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर द न्यू सेल सपोर्ट सिस्टम. ज्यादातर हम सेल्स और इन्वेंट्री की ही बात करते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम में ज्यादातर यही वर्क होता है. नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या योर यूजर. सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होगा, आपका क्लर्क हो सकता है, बिलर होगा जो बिल बना रहा है, इन्वेंट्री सिस्टम जो आपका जो यूजर होगा वो हो सकता है, एंड अदर पर्सनल. तो एक ट्रेनिंग सेशन भी होगा. इम्प्लीमेंटेशन में ये सब कुछ होता है. इम्प्लीमेंटेशन एक प्लान होता है. एंड कन्वर्जन प्रोसीजर एंड टाइम टेबल फॉर फाइनल इम्प्लीमेंटेशन. ठीक, let it should be clear to all of you that whenever you are going to develop a system, then the system development and delivery procedure is take out in a phases. ये फेज में होता है प्रोसेस. जब भी आप करते हैं पूरा सिस्टम, ये नहीं कि एक बार आपने पूरा डेवलप कर दिया तब जाके क्लाइंट की सिस्टम पे आपने उसको अपलोड कर दिया, उसको डिलीवर कर दिया. नो, system is developed in modular and phase wise, and also delivery of the system is also modular and phase wise. So the main procedure conversion procedure and implementation plan. conversion का मतलब क्या हो गया कि जब आप उससे कुछ रिसोर्सेज लेते हैं क्लाइंट से या सिस्टम से, यूजर से, आप यूजर का डेटाबेस ले रहे हैं. सपोज करिए उनका जो डेटाबेस है, उनके जो डेटा रिसोर्सेज है वो एक्सेल में बने हुए हैं. तो आप और आपका जो प्रपोज टेक्नोलॉजी है वो आप एसक्यूएल सर्वर में काम कर रहे हैं और एक्सेल में काम कर रहे हैं. तो आपको क्या करना है, उनके एक्सेल के डेटा को कन्वर्ट करना है एसक्यूएल फॉर्म में. ठीक है, एक्सेस में हो सकता है उन्होंने काम किया हो, उनका डेटाबेस एक्सेस में हो, तो उसको कन्वर्ट करना है अपने एसक्यूएल सर्वर, माई एसक्यूएल में या कोई भी डेटाबेस में. क्योंकि किसी भी कंपनी का डेटाबेस ही इंपॉर्टेंट होता है. बाकी उनके टेक्नोलॉजी फॉर्म से हमें कोई मतलब नहीं है. फॉर्म तो हम बना ही लेंगे, वो GUI होते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस या यूजर इंटरेक्टिव पेजेस, तो वो उन पेजेस से हमें कोई कंसर्न नहीं है. We only concern about the data and the database. So the conversion procedure is very important. So conversion and जो है implementation must be done with timetable या एक प्लान बन जाता है. इम्प्लीमेंटेशन प्लान को हम और ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, उसमें टाइम टेबल, टाइम प्लान बन जाता है. एंड इट इज मेंटेन्ड बाय एंड कंट्रोल्ड बाय शेड्यूलिंग द कॉन्सेप्ट, जिसमें कि आपका एक गैंट चार्ट या पार्ट चार्ट बन जाता है. नेक्स्ट, इम्प्लीमेंट द सोल्यूशन. और उसके बाद डिजाइन. हमने डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन को एक साथ ही यहाँ पे डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, डिजाइन वाला और इम्प्लीमेंटेशन इस 4th स्टेप में आ गया. और 5th स्टेप जो है हमने यहाँ पे नया ले लिया है इसके बिसाइड्स दिस डायग्राम, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. इस चार्ट में वो मिस है, लेकिन ये इट इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म whenever you are going to develop any software solution, means post implementation or review also. And review, the final step of system approach recognize that implemented solution can fail to solve the problem for which it was developed. Why I am saying that fail word हम इसलिए कह रहे हैं कि हो सकता है जब तक यूजर से आपने डील ली थी और आपने डेवलप में काफी टाइम लगा दिया, या रिक्वायरमेंट आपने करेक्टली कलेक्ट नहीं की, तो मे बी जो आपने सिस्टम उसको डिलीवर किया है फेल्ड टू फुलफिल इट्स रिक्वायरमेंट्स, या हिज रिक्वायरमेंट जो नीड उनकी थी वो आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो फेल हो गया. या नाउ नीड बिकम्स चेंज, अब वो नीड भी उनकी चेंज हो गई, जो पहले थी वो बदल गई है, उनकी जो है नीड चेंज हो गई है. सो देन कम टू द नेक्स्ट स्टेप, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन, या रिव्यू भी करना है आपको उस सिस्टम को. ठीक है, तो इन द पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू प्रोसेस, सक्सेस ऑफ सोल्यूशन रिव्यूड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन, एंड इफ यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड
you should re-engineering of the current system, or maybe fresh implementation will be carried out. But this process is analyzed or work out with this step known as post implementation and review process. Very important है. तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी नीड चेंज हो गई है, या आपको कैसे पता चलेगा कि उनकी नीड फुलफिल नहीं हो रही है? वो स्टेप कैरीड आउट होगा पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन से. एक बार आपने जान लिया, उसके बाद उसको पोस्ट इम्प्लीमेंट कर लीजिए. लेकिन फिर भी अगर लग रहा है ही इज नॉट सेटिस्फाइड, यूजर इज नॉट सेटिस्फाइड, द सिस्टम बाय विच you are going to working is also not fulfill the purpose of goal of organization, then the fresh development will be carried out. So this is all entire about the system approach. इसमें किसी को कोई भी स्टेप में प्रॉब्लम हो तुरंत पूछ लीजिए. पोस्ट कौन? हाँ, नहीं, पहले तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन पोस्ट मतलब समझ रहे, इम्प्लीमेंटेशन का पोस्ट पार्ट यानी बाद का इम्प्लीमेंटेशन में भी यूजर की नीड नाउ बिकम चेंज हो गई, या रिक्वायरमेंट दूसरी तरह की हो गई है, तो आप उसी सिस्टम में चेंज कर देते हैं. उसको कहते हैं पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन. ऑन नो फीडबैक डिपेंडेंट. दिस इज नॉट फीडबैक डिपेंडेंट, बिकॉज आप भी अपने पास, आपके पास सभी लोग मोबाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं. आपके समटाइम्स बाद आपको लगता है कि इस मोबाइल में अब आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, तो उसने जब आपने ये रिक्वायरमेंट जनरेट की और नया सिस्टम परचेज किया, तो कहीं कोई फीडबैक की वहां पे स्टेप्स नहीं फॉलो हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, क्या है कि आपने तुरंत नया मोबाइल फोन ले लिया. भाई आपको लग रहा है रैम इसकी कम है, सिस्टम स्लो वर्क कर रहा है, वर्किंग इसकी काफी स्लो है, कैपेसिटी कम है. ठीक है, तो आपने क्या किया, नया सिस्टम यहाँ पे परचेज कर लिया, नया मोबाइल ले लिया. यहाँ पे भी यही हो रहा है कि अभी तक उन्होंने जो रिक्वायरमेंट दी थी वो फुलफिल हो रही थी, लेकिन अब उनका बिजनेस बढ़ गया है, उनकी वर्किंग स्टाइल चेंज हो गई है. अभी तक 1 से 2 ब्रांचेस में वो डील कर रहे थे, अब नंबर ऑफ ब्रांचेस, नंबर ऑफ सिटीज में वो ज्यादा हो गई है. तो अब क्या हुआ, रिक्वायरमेंट चेंज हो गई. ठीक है, अब उनको क्या लगता है, वो 2 तरह से हो सकता है, या तो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, सिस्टम फेल है, या इसी में आप चेंज कर सकते हैं. हमारी रिक्वायरमेंट को अब आप हमारी इनहेंस हो गई, इसी में आप चेंज कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कॉस्ट और टाइम पे, मतलब टाइप ऑफ यूजर. इसमें आ जाएगा एक अलग से कॉन्सेप्ट, टाइप ऑफ यूजर. या तो वो क्या कहेगा, किसी को चेंज कर दीजिए, इसी में मॉडिफाई कर दीजिए, इसी में मॉडिफिकेशन कर दीजिए. तो आप एक रिव्यू कॉल करेंगे, रिव्यू कॉल करने के बाद आपको लग रहा है कुछ कुछ फॉर्म में चेंज करना है, कुछ वर्किंग स्टाइल जो उन्होंने लिखी है उस फॉर्म में चेंज करके हमारा काम हो जाएगा. लेकिन नहीं, जहां पे उनको लगता नहीं बिजनेस बड़ा है और ही आल्सो इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट मनी बजट फॉर न्यू सिस्टम, तो आप क्या करेंगे, एक फ्रेश डेवलपमेंट करेंगे. तो बेसिस आपका यही होगा. ठीक है, पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन के बाद ही ये सारे स्टेप्स आप लेंगे, या तो यहीं पे आप चेंज कर देंगे. तो पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन का मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो यहाँ पे हो चुका है उसके बाद का प्रोसीजर, ये इसके बाद का प्रोसीजर है. पोस्ट का मतलब ही यही है, और उसमें यही हो सकता है या तो इसी में चेंज हो जाए या फ्रेश डेवलपमेंट हो. तो इट इज नॉट बेस्ड ऑन फीडबैक डिपेंडेंट, it only depend upon the requirement of the user, because user is moody और choosy, उसकी रिक्वायरमेंट हमेशा चेंज होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी. एनीवन? और किसी की कोई प्रॉब्लम? राज, मैंने आपने जो पेज बोला था, मैंने वो पेज दोबारा से गूगल क्लासरूम में उस पेज का स्नैप डाल दिया था. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक विच विल बी डिस्कस्ड
in next lecture सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC, जो कि हमारा नया लेक्चर में होगा। ठीक है, ये अभी तक हमने थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ा था। अब ये प्रैक्टिकल अप्रोच विच इज फॉलोड बाय एवरी सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, एवरी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एवरी पर्सन, वट एवर स्मॉल सॉफ्टवेयर, ठीक है, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर हो या लार्ज स्केल का सॉफ्टवेयर, बहुत बड़ा अगर सॉफ्टवेयर हो, लेकिन ये मॉडल सभी लोग फॉलो करते हैं। सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इन अवर केस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जो बेस होगा ये, और इसी पे प्रैक्टिकल, इसके स्टेप्स कुछ आपको अलग से दिखेंगे। बेसिस यही होगा, बट स्टेप प्रैक्टिकली होंगे जो कि हम लोग फॉलो करेंगे। दीज आर सिस्टम अप्रोच जो है थ्योरेटिकल अप्रोच, SDLC इज द प्रैक्टिकल अप्रोच विच विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर। So now I am concluding my lecture, और 11:31 11:32 के आसपास आप लॉग इन करेंगे अपने गूगल क्लासरूम के थ्रू। फिर से उसको देखिए तो आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहीं से सरप्राइज टेस्ट आपका कंडक्ट हो जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत होती इंडिविजुअली कॉल मी, नॉट क्रिएट chaos ऑन व्हाट्सएप ग्रुप। तो आई एम एंडिंग द लेक्चर। ठीक है, समझ में आई बात सबको? हाँ, 11:30 बजे शेड्यूल है, 11:31 या 32 पे आप इसको जो है आपको लिंक एक्टिवेट हो जाएगा, और लगभग 10 मिनट का टेस्ट है, 5 क्वेश्चन है, और 15 मिनट मैंने रखा हुआ है। उसको तुरंत सबमिट करके हैंड इन जरूर कर दीजिएगा सभी लोग। अटेंडेंस वहीं पे हम वहां से ले लेंगे, CSV फाइल बनती है उसी से हम ले लेंगे अटेंडेंस, जो आपके रिस्पांस होंगे उसी से अटेंडेंस आपकी वहां पे मेंटेन हो जाएगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, नो नो नो, नहीं, नो स्क्रीनशॉट, नो एनी मैसेज इन द ग्रुप। ठीक है, कुछ नहीं, आपको सिर्फ वहां पे हैंड इन करना है, दैट्स ऑल। सबमिट करिए गूगल फॉर्म को और हैंड इन कर दीजिए, दैट्स ऑल। कोई प्रॉब्लम मुझे फोन करिएगा। ठीक है, थोड़ी देर में ऑटोमेटिकली 11:31 पे एक्टिवेट हो जाएगा।